As we have started the chapter, The Rise of Nationalism in Europe, we have discussed the meaning of nationalism. We have seen the painting painted by Frederick Solvay in 1848, in which he had just expressed his utopian views that the coming world will going to reorganize on the principles of democracy and republican form of government. We have also seen the role of French Revolution and how French Revolution shown the seeds of nationalism in Europe. Meanwhile, we have also gone through the work of Napoleon that helped the sentiment of nationalism to spread. We have also seen Napoleon had not started these reforms for the sake of spreading the idea of nationalism. Rather, he was doing for the sake of the convenience of his administration. वह अपने शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसने यूनिफॉर्म कोड बिल को 1804 में इंट्रोड्यूस किया. Napoleon rose to the power in 1804, remember, and he remained in power till 1815 actually. In 1815, he was defeated by 4 joint forces. We will discuss about this. That is an important topic. And then after the defeat of Napoleon, a new regime, a new kind of political order established in Europe. We have also discussed about the condition of European society. We have seen at one side aristocracy was dominating, and at the other side the middle class was going up. In the background of the Industrial Revolution, this emerging new middle class has just raised their voice, raised their hands against the domination of aristocracy and demanded more and more freedom. Freedom for the sake of ease of trade and commerce. Freedom to get out from the serfdom and manorial dues. They were demanding about the recognition of merit rather than privilege based on birth. So new scenario was going to be taking place. Because the condition of society was the key for any kind of change. When people were not happy with their existing political system, when the people do not happy with the existing economic and social system, they rebel. They organize themselves against such kind of suppressive system. This organizing people having some basis, some common thing, and that common thing that bind these people together, that become the reason for rise of nationalism. This sense of unity imparted among these group of people on various purposes, various reasons were there. They were taking their own notion. For their own reasons they were grouped, but they all were trying to have their own identity, अपनी पहचान, सुंदर पहचान. जब उन्होंने देखा कि उनके ऊपर एक ऐसे शासन व्यवस्था को थोपा गया है जो उनकी नहीं है, जो शासन व्यवस्था उनकी नहीं सुनती है. ये भी मैंने आपको बताया था कि इस समय जो यूरोप में जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो पॉलिटिकल सिस्टम मल्टी कल्चरल डायनेस्टी की बात है. मल्टी कल्चरल, इस सेंटेंस को याद रखिए, इस वर्ड को, मल्टी
कल्चरल डायनेस्टीज, ये मल्टी कल्चरल डायनेस्टीज और मल्टी कल्चरल एम्पायर की बात कर रहे थे। डायनेस्टी छोड़िए, अभी एम्पायर की बात कर रहे थे। तो मल्टी कल्चरल एम्पायर का मतलब होता है कि एक ऐसा एम्पायर जिसमें डाइवर्स कल्चरल ग्रुप के लोग रहते हो, जिनकी लैंग्वेज, जिनके रिलीजन, जिनके बिलीफ्स, जिनके प्रैक्टिसेस बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से, बट स्टिल दे वर अ पार्ट ऑफ द एम्पायर। व्हाई? बिकॉज दे ऑल वर पुट बाय फोर्स टुगेदर। एंड ये फोर्स किसकी है? ये है उस राजा की ताकत। और ये राजा कैसा है? तो ये राजा एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की को प्रमोट करने वाला, एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की को फॉलो करने वाला, जो डिवाइन राइट ऑफ किंगशिप को मानता है। आपको याद होगा बच्चों कि डिवाइन राइट ऑफ किंगशिप इस बात को रेखांकित करती है कि राजा धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। राजा के चुनाव में जनता का कोई रोल नहीं है, क्योंकि राजा धरती पर ईश्वर का रिप्रेजेंटेटिव है। अर्थात राजा को, एक व्यक्ति को राजा ईश्वर ने चुना है और ईश्वर ने ही उस व्यक्ति को एक टेरिटरी दी है राज करने की। बड़ी खतरनाक है क्या? इसका आशय यह है कि यदि जन समुदाय राजा के खिलाफ खड़े होते हैं, इसका मतलब वो ईश्वर के खिलाफ होते हैं। ये वो आइडिया थी जिसने पूरे मेडाइवल पीरियड में यूरोप को कंट्रोल किया। यूरोप की सारी शासन व्यवस्था के मूल में यही भावना थी। और जनता इस प्रकार से धर्म भीरू हुआ करती थी, धर्म के प्रति इतनी आसक्त थी कि वो इसके आगे सोच नहीं सकती थी। तो ये परिवर्तन हुए, ये परिवर्तन उसी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बैकग्राउंड में है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में है। जब मार्टिन लूथर किंग जैसे लोगों ने बाइबल को लोकल लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, तो लोगों को समझ में आया कि जो चर्च धर्म की आड़ में प्रोपेगेंडा कर रही थी, वास्तव में ऐसा कुछ भी बाइबल में नहीं लिखा हुआ। तो कई सारी चीजें एक साथ मिलकर लोगों के विचारों में क्रांति पैदा करती है। देखिए, ये वैचारिक क्रांति से ही ये राष्ट्रीयता का उदय होगा। लोगों के मन मस्तिष्क से उस प्रकार की जो परंपरागत भावनाएं थी, जिसमें वो तार्किक रूप से सोच नहीं पाते थे, जब तक वो नहीं निकलेंगे तब तक वो अलग नहीं सोच पाएंगे। ये नेशनलिज्म उन्हें अलग से सोचने के लिए मजबूर करते हैं। ये मजबूर कब होंगे? जब उनके अंदर ये आत्मचेतना जागेगी कि वो क्यों इस प्रकार के भेदभाव को बर्दाश्त करेंगे, क्यों नहीं वो इसके खिलाफ जा सकते हैं। जब उन्हें स्वयं के अधिकारों का बोध होगा, स्वयं के मानव होने का बोध होगा, तो वो निश्चित रूप से अत्याचार, दमनकारी और स्वेच्छाचारी शासन के खिलाफ आवाज उठाएंगे। अब इस परिस्थितियों में हमने देखा राइट ऑफ मिडिल क्लास, इस मिडिल क्लास के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और यहां पे देखते हैं कि जो डाइवर्स पॉपुलेशन किसी एम्पायर के पार्ट होते थे, तो कमोबेश यूरोप के लगभग हर जगह इस प्रकार की सिचुएशन थी, क्योंकि ये मल्टी डायनेस्टिक मल्टी कल्चरल एम्पायर की बात है। तो कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं कि कैसे इस प्रकार के तनाव यूरोप के कई देशों में प्रिवेल करते थे, क्योंकि इसी बैकग्राउंड में हलचल होने वाली है और इसी बैकग्राउंड में ये नेशनलिज्म की जो बीज है वो पनपेगी। ये असंतोष लोगों को स्वयं की पहचान के लिए प्रेरित करेगी और अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाने के लिए, अपनी समुदाय की पहचान बनाने की जो एक जद्दोजहद होगी, वो उन्हें इस नेशनलिज्म की ओर मोड़ेगी। तो बच्चों, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको आप ध्यान से सुनने पढ़ने की कोशिश करना, अपनी टेक्स्ट बुक से मिलाना, वहां आप देखना, और यहां जो मैं बता रहा हूं उनके साथ मिला करके आप अगर काम करोगे तो यू विल बी ब्लॉक। आप बिल्कुल स्पष्ट समझ जाओगे। लोग कहते हैं चैप्टर बहुत बोरिंग है या
बहुत भास्ट है, नहीं, एक सिलसिलेवार ढंग से घटनाओं का एक क्रम है, उस क्रम को समझिए। तो परिवर्तन समाज में, तो समाज की स्थिति क्या थी, क्या कारण थी कि लोग परिवर्तन के प्रति जागरूक हुए। जैसे अभी देखिए, अभी तक हम लोग इस पेंडेमिक से पहले, कोविड-19 के पहले स्कूल रेगुलर हुआ करते थे, हम लोग क्लास में पढ़ाया करते थे, रेगुलर क्लासेस हुआ करती थी, लेकिन परिस्थिति नहीं आई, आपने भी नहीं सीखी, हम टीचर्स ने भी नहीं सीखी, और आज ऑनलाइन क्लास की बात हो रही है। आज यूट्यूब के थ्रू, चैनल के थ्रू आप पढ़ रहे हैं, आप घर पे हैं, हम लोग भी अपने अपने वर्किंग प्लेस पे काम कर रहे हैं, हमारे भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, बट द शो मस्ट गो ऑन, हमने रास्ता निकाला। उसी प्रकार से अलग अलग परिस्थितियों में व्यक्ति अलग प्रकार से सोचने की किया करता है, और उसी से एक नए रास्ते निकलने की सिखाना। तो इस परिस्थितियों में जब मल्टी कल्चरल एम्पायर थी तो टेंशन होगी। आपको याद होगा पावर शेयरिंग आपने श्रीलंका में पढ़ी, उस चैप्टर में क्या था, श्रीलंका के केस में क्या हुआ, पावर शेयरिंग में उनको तमिलों को पार्टिसिपेशन नहीं मिली, तमिलों ने विरोध किया है। सिविल वॉर बेल्जियम के केस में भी आपने पढ़ा कि डाइवर्स कम्युनिटी है, उनकी नीड्स डाइवर्स है। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा डेवलपमेंट, तो आपने पढ़ा डिफरेंट पीपल हैविंग डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। ये एक्चुअली सारी चीजों का यही एप्लीकेशन है, इस कोई भी चीज इंडिपेंडेंट नहीं है। इन सारी चीजों को अगर समग्रता से देखें तो यहां आपको कारण लिखेगा। अब देखिए, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है, फर्स्ट स्टेटमेंट दैट आई हैव रिटन, नेशनलिज्म हैड ट्रम्प्ड इन मेनी यूरोपियन कंट्रीज ड्यूरिंग द 19th century. Still there were numerous groups which were suppressed and were refused self-government. नेशनलिज्म की आइडिया को पलटने लगी, लेकिन अभी भी वहां कई सारे ऐसे कंट्रीज थे जिनके ऊपर एक दमनकारी शासन थी और जिनकी अपनी पहचान नहीं थी। जैसे the minority groups like Jews, Poles, Finns and other racial minorities were asked to give up their own customs and languages. ये कहां के लिए है, तो ये आपकी है रशियन एम्पायर। ये रशियन एम्पायर की ये केस है। रशियन एम्पायर के जो माइनॉरिटीज ग्रुप थे, कौन कौन, माइनॉरिटी मतलब होता है जिनकी संख्या कम है, जो अल्पमत में होते हैं, तो उनके लिए क्या था, जो जीव्स थे, पोल्स थे, फिन्स थे, अदर रेशियस माइनॉरिटी जो कम संख्या में अल्पसंख्यक, जैसे याद कीजिए श्रीलंका के केस में तमिल अल्पसंख्यक थे, यानी इनकी संख्या कम थी, 70%, सीनाल डोमिनेट करते थे पॉपुलेशन वाइज भी। तो वहां पे इसी प्रकार की माइनॉरिटी को दबाने की बात की, उनको कहा गया कि अपनी भाषा, अपनी कल्चर, अपनी पहचान भूल जाए और मेजॉरिटी पॉपुलेशन की जो चीजें हैं उसको एडॉप्ट करें। दूसरा एग्जांपल देखिए, ऑस्ट्रियन हंगरी हाब्सबर्ग एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपोलियन के डेथ के बाद, आफ्टर नेपोलियन डिपार्टेड इन 1815, डिफीटेड इन बैटल ऑफ वाटरलू, उसके बाद दिस ऑस्ट्रियन हाब्सबर्ग एम्पायर बहुत मजबूती से उठी। Two, there were numerous groups of rebellion specialists who were suppressed by the government. वहां भी जो माइनॉरिटीज थे उनको दबाया जाता था, जो डाइवर्स पॉपुलेशन थी उनको दबाया जाता था। नेक्स्ट देखिए, मैंने ग्रेट ब्रिटेन का एग्जांपल दिया है। ग्रेट ब्रिटेन हैड टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ आयरिश नेशनलिज्म। इसके ऊपर हम लोग पढ़ेंगे, एक सेपरेट टॉपिक पढ़ेंगे, स्ट्रेंज केस ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। वहां पढ़ेंगे कैसे ये आयरिश प्रॉब्लम, आयरिश कम्युनिटी के साथ, उस पॉपुलेशन के साथ ग्रेट ब्रिटेन के रेस्ट पॉपुलेशन का कितना बड़ा क्लैश है। नेक्स्ट, द ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर याद होगा, नेशनलिज्म इंडिया पढ़े थे हम लोग। ऑटोमन एम्पायर, टर्की, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और हमारे यहाँ कैसे थी खिलाफत मूवमेंट, ये उसी ऑटोमन एम्पायर की बात है। इट वाज आल्सो अ ग्रेट एम्पायर। तो इस ऑटोमन एम्पायर में, यानी कि टर्किश एम्पायर कहते हैं इसको, इसने भी यूरोप के कई हिस्सों पर कब्जा कर रखा था, और इसीलिए इकोनॉमी थी ग्रीस। तो ग्रीस, द पीपल ऑफ ग्रीस वे कॉल्ड ग्रीक्स, इन्होंने टर्किश एम्पायर के खिलाफ विद्रोह किया। सच पूछिए तो यूरोप में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद अगर एविडेंटली क्लियर कट अगर कहीं पर नेशनलिज्म की आग भड़की तो वो ग्रीक, यानी ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हम पढ़ेंगे इसे। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था, और इसी प्रकार से देख लीजिए प्रेजेंट इन जर्मन किंगडम्स एंड इटालियन, इसी प्रकार की कंडीशंस जर्मन किंगडम और इटालियन किंगडम में थी, और इसी कारण हम लोग पढ़ेंगे जर्मन यूनिफिकेशन, इटालियन यूनिफिकेशन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि ये ध्यान में रखना है, क्योंकि ये जो तनाव के बिंदु हुए हैं इन सबों के विषय में हमें डिटेल पढ़ना है कि वहां किस प्रकार से नेशनलिज्म की
आग भड़की और नेशनलिज्म ने कैसे एक नई व्यवस्था को जन्म दिया। लेकिन फिलहाल जो नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं वो टॉपिक होगी नेपोलियन के डेथ के बाद आने वाली नई व्यवस्था, जिसको हम कहेंगे कंजर्वेटिज्म। 1850 में यूरोप में कंजर्वेटिज्म आएगी और जिसको लीड करने वाला व्यक्ति होगा मेटरनिक। तो मेटरनिक सिस्टम को हम आगे पढ़ेंगे। चलिए शुरू। As we are discussing about conservatism is very important because this particular system had paved the path for the nationalism. First of all, let's try to understand what does conservatism means. यदि आप लोगों ने क्लास 9 में चैप्टर नंबर 2 राइज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो चैप्टर है द रशियन एम्पायर के विषय में जो पढ़ा होगा, द रशियन रेवोल्यूशन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशलिज्म, वहां 3 प्रकार के डिफरेंट ग्रुप ऑफ थॉट्स को पढ़ने थे। लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म और एक और थे, याद है? आप किताब देख लो, सारी बात मैं बताऊंगा तो आप क्या पढ़ेंगे। चलिए कोई बात नहीं। तो लिबरलिज्म की बात हम लोग पहले कर चुके हैं, अब कंजर्वेटिज्म की बात है। एक्चुअली कंजर्वेटिज्म स्टेटस को बनाने की बात है, मतलब जो है जैसा है ठीक है। दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन चेंज एंड इफ दे एग्रीड फॉर चेंज दे बिलीव दैट द चेंज शुड बी वेरी मच स्लो एंड इट शुड रिटेन द ट्रेडिशनल सिस्टम्स टू, मतलब परिवर्तन हो लेकिन परंपरागत व्यवस्था को बनाए रखते हुए हम चेंज करें। They do not support any kind of quick change as the radicalism will be. 3 thoughts मैंने कहा था, liberalism, conservatism और radicalism। तो यहाँ पे ये conservatism स्टेटस को बनाने की बात करते हैं, यानी पुरानी व्यवस्था को ही बनाए रखने की बात करते हैं। और अगर परिवर्तन करने की बात करें तो उस पुरानी व्यवस्था में इस प्रकार से परिवर्तन किया जाए कि पुरानी व्यवस्था में कोई भी गिरावट नहीं हो, पुरानी व्यवस्था कायम नहीं हो। अब ये पुरानी व्यवस्था क्या है? आप सोच रहे हैं पुरानी व्यवस्था क्या है? अब थोड़ी सी चीजों को जोड़ते हैं। आपको याद होगा व्हेन नेपोलियन रोज टू पावर in 1804, almost all part of Europe, all major kingdoms of Europe were to the feet of Napoleon. Means नेपोलियन ने राजा बनने के बाद फ्रांस की गद्दी पे बैठने के बाद अपनी एक विशाल आर्मी की सहायता से उसने a series of expeditions मीन्स विजय अभियान, जिसका उद्देश्य था पूरे यूरोप को जीतना। एंड ही डिड इट, उसने किया नहीं, इसलिए नेपोलियन को एक ग्रेट कॉन्करर माना जाता है। लेकिन इस क्रम में आप ध्यान देंगे एक देश ही उसकी पहुंच से बाहर रहा, वो था ब्रिटेन। नेपोलियन वाज ट्राइंग टू जस्ट डिफीट ब्रिटेन, बट some reasons were there due to which Napoleon was unable to occupy Britain. But ये झगड़ा चला, ये झगड़ा बहुत बाद तक चला। क्या? तो नेपोलियन जब 1804 में रूल करने आता है तो आप याद कीजिए, he had just introduced a set of reforms that was called the Napoleonic Code, and I have already underlined about the code, that Napoleonic Code, that how Napoleonic Code aiming to increase the efficiency of the administration, ultimately contributing in the rise of nationalism. That particular Napoleon rule goes against the traditional political order
देयर वाज द एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की, यानी राजा सर्वोच्च व्यक्ति होता था, राजा की सत्ता सर्वोच्च होती थी, राजा की सत्ता पे किसी प्रकार के प्रश्न चिन्ह नहीं आरोपित किया सकते, मतलब राजा was unquestioned, no constitution, राजा के बोल, राजा के ऑर्डर ही कानून होते थे, ये थी आपकी एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की। बट फ्रेंच रेवोल्यूशन हैज चेंज्ड द सिनेरियो फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की टू रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देन द नेपोलियन एक्ट। नेपोलियन ने सारी व्यवस्था को एक नए सिरे से रच दिया, कई सारे परिवर्तन उसने किए। आपको याद होगा जर्मन स्टेट्स, जो जर्मन किंगडम, जिस जर्मन टेरिटरी की बात करते हैं, उस समय जर्मनी नाम का कोई देश नहीं था। वो जर्मन किंगडम बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में बटा था, मोर देन 300। इट वाज द नेपोलियन, ही रिड्यूस्ड दोस नंबर्स एंड जस्ट formed a confederacy of 39 German states। अब 300 से अधिक जर्मन स्टेट्स को उसने क्लब कर दिया 39 जर्मन स्टेट्स में। ये जर्मन यूनिफिकेशन की बेस बन गई। इसके साथ साथ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, करेंसी को नेशनलाइज करना, वन करेंसी, यूनिफॉर्म वेट, मेजरमेंट, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सबको इंप्रूव करना, इन परिवर्तनों ने पूरे यूरोप के मानचित्र को बदल दिया। नए बाउंड्रीज बनने लगे एम्पायर की, क्योंकि फ्रेंच एम्पायर हैज एक्सटेंडेड एट इट्स ऑप्टिमम अंडर द नेपोलियन। तो इतनी तेजी से फ्रांस के एम्पायर का विस्तार हुआ कि यूरोप के देशों की किंगडम्स की पूरी बाउंड्री बदल गई। ये वो पीरियड था जब नेपोलियन का सिक्का पूरे यूरोप में चला। इस व्यवस्था में नेपोलियन ने अपने रिजीम में जो एक नई व्यवस्था लाई, वो पूरी तरीके से पुरातन व्यवस्था, जो ट्रेडिशनल सिस्टम थी यूरोप में, जो प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ थी, उसको नेपोलियन ने समाप्त कर दिया। रूल ऑफ लॉ की एस्टैब्लिशमेंट की, जबकि उसके पहले इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, राजा के बोल ही कानून होते थे। अब इस व्यवस्था के खिलाफ जो कंजर्वेटिव विचारों को रखने वाले रूलर्स थे, किंगडम्स थे, दे वर नॉट हैप्पी। They were just trying to find out the ways to uproot Napoleon, and they did it. ये हुआ। तो मैं बता रहा था कि नेपोलियन की रिजीम में, नेपोलियन की पीरियड में पूरे यूरोप में एक परिवर्तन आया और एक नई व्यवस्था की स्थापना हुई यूरोप में और फ्रेंच एम्पायर में। अब एक चीज और ध्यान, आप ये सवाल कर सकते हैं कि सर आप नई व्यवस्था की बात करते हैं, नेपोलियन ने की, लेकिन क्या नेपोलियन सच में मोनार्की को समाप्त किया? नहीं बच्चों, यही मैं बताना चाहता हूं। नेपोलियन हिमसेल्फ इमर्ज्ड एज अ एम्परर एंड ही आल्सो वायलेटेड द प्रिंसिपल ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। क्योंकि जिस एम्पायर को, जिन किंगडम्स को वो जीतता है, वहां पे उनको सेल्फ रूल की परमिशन नहीं देता है, वहां अपने फैमिली मेंबर को रूल बना देता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट उसने ये दिखाया कि मॉडर्नाइजेशन लाने के बाद भी हम ऑटोक्रेटिक रूल को रख सकते हैं, राजा की ताकत को बनाए रख सकते हैं। दैट वाज द की फॉर इंस्पायरिंग द कंजर्वेटिव। उन्होंने अभी तक कंजर्वेटिव ये बिलीव करते थे कि मॉडर्न आइडियाज को अडॉप्ट नहीं कर सकते, बट नेपोलियन ने करके दिखाया कि एक ऑटोक्रेटिक रूल, नेपोलियन बाद में खुद एक ऑटोक्रेटिक रूलर को मतलब देख लेते, तो खुद एक ऑटोक्रेटिक रूलर मॉडर्नाइजेशन भी कर सकता है, एंड दैट वाज द की फॉर द कंजर्वेटिव रिजीम। तो अब सिंपल शब्दों में समझते हैं कंजर्वेटिज्म क्या है। कंजर्वेटिज्म पुरानी व्यवस्था, पुराने इंस्टीट्यूशन को बनाए रखने वालों की विचारधारा। दे डू नॉट बिलीव इन चेंजेस, and if they believe, if they accept the changes, they accept change while keeping the old institutions, traditional institutions, practices in existence। ये उसको abolish नहीं कर सकते। तो इसी चीज को ध्यान रखिए, पुरानी व्यवस्था को बनाए रखने वाले। नेपोलियन एक ऐसा व्यक्ति है जो मॉडर्नाइजेशन की बात करता है, लेकिन इंट्रोडक्शन मैंने बताया मॉडर्नाइजेशन के बाद चीजें बदलती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारा उसने, लेकिन ताकत
ऑटोक्रेटिक रूल क्या, डेमोक्रेटिक रूल नहीं बताऊं? तो देखिए अब इस बोर्ड पे मैंने जो बात लिखी है वो थोड़ा आप ध्यान देंगे। कंजर्वेटिव्स बिलीव दैट द मोनार्की राजा, द चर्च मैंने क्या कहा था, धर्म यूरोप का एक मूल आत्मा, धर्म की बहुत प्रधानता थी और लोगों की धर्म के प्रति गहरी आस्था थी। तभी तो डिवाइन राइट ऑफ किंगशिप की बात करें कि राजा धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, जनता का नहीं, ईश्वर का। तो यहां जब ये विचारधारा थी तो चर्च सबसे मजबूत संस्था है, सबसे मजबूत। एंड सोशल हायरार्कीज, जो सामाजिक व्यवस्था थी, जैसे क्या थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, ये चीजों को ये मानते थे कि ये व्यवस्था रहनी चाहिए, शुड बी प्रिजर्व्ड, कायम होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में कंजर्वेटिज्म रेफर्स टू अ पॉलिटिकल फिलॉसफी, एक प्रकार की विचारधारा that believe in traditional customs and take its own time to bring any change। मैंने क्या कहा, चेंज चाहिए, अगर एक्सेप्ट भी करेंगे तो अपने तरीके से पुरानी व्यवस्था को बनाए रखते हुए वो चेंज करेंगे। थोड़ी सी बात और सुनाते हैं। They realize that modernization could strengthen the institutions। वर्क कीजिए, ये कहते हैं मॉडर्नाइजेशन की चेंज है, इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन, किस इंस्टीट्यूशन को, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को, जो पुरानी व्यवस्था है, चर्च है, मोनार्की है, हायरार्की सिस्टम है, उसको मजबूत कर सकती है। फिर लगा कंट्रडिक्शन, किसी परिवर्तन की बात करते हैं, पुरानी व्यवस्था की बात करते हैं। मैंने अभी क्या आपको दिया है, नेपोलियन ने यही करके दिखाया, ये राजा बन के रहेगा, ऑटोक्रेटिक रूलर, लेकिन चेंज करके दिखाएंगे, ये उसी बात को कह रहे हैं। दे इंस्पायर्ड बाय द डीड्स ऑफ नेपोलियन, ये नेपोलियन ने करके दिखाया, परिवर्तन के साथ उसने ऑटोक्रेटिक रूल को बना के दिखाया, ये वही बात होती है। They realized that modernization could strengthen the institutions like monarchy. In fact, they could derive inspirations from Napoleon. Napoleon who inspired them, who brought about all changes by strengthening autocratic rules. Change तो लाया, साथ में autocratic rule, राजा की ताकत को ही मजबूत कर दिया उसने। तो राजा की ताकत मतलब कंजर्वेटिज्म। तो that was the point where this conservatism that was going to establish their regime after the defeat of Napoleon in Europe, they were very much just convinced about that. तो ये बात मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी कंजर्वेटिज्म क्या है, कैसे यूरोप में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, कैसे ये विचारों का संघर्ष है। अब देखिए हुआ ये कंजर्वेटिज्म आई कैसे, जैसे मैंने बार-बार कहा कि ये एस्टैब्लिश होती है आफ्टर द डेथ ऑफ नेपोलियन। तो नेपोलियन was defeated in 1815 in the battle of Waterloo by the hands of 4 European powers। यहाँ से आपसे सवाल पूछे जाते हैं एक नंबर में कि किन-किन यूरोपियन पावर ने मिलकर के नेपोलियन को हराया। You have to remember about 4 kingdoms: Britain, Russia, Prussia and Austria। Austria, it is not Australia, it is Austria। Austria याद रखिएगा, it is Prussia। ये प्रुशिया कौन थी? जर्मन किंगडम। याद कीजिए नेपोलियन ने क्या किया था, जो 300 से अधिक कॉन्फेडरेशन, 300 से अधिक जो जर्मन टेरिटरीज थे उनको रिड्यूस किया था 39 में। 39 जर्मन किंगडम्स के कॉन्फेडरेशन, उसके समूह की सबसे बड़ी जो ताकत थी वो थी प्रुशिया। बाद में इसी की लीडरशिप में जर्मन यूनिफिकेशन होगी, तो प्रुशिया, ब्रिटेन, रशिया और ऑस्ट्रिया, ये 4 ताकतों ने मिलकर के नेपोलियन को यानी फ्रांस को हराया 1815 में वाटरलू में। और नेपोलियन की बात होती है, वो कैद खाने में, सेंट में कैद होता है, वो मारा जाता है। अब इसके बाद एक न्यू पॉलिटिकल सिस्टम टुक होल्ड इन यूरोप, दैट वाज कॉल्ड कंजर्वेटिज्म। इसी के बाद जो नई व्यवस्था आई वो है कंजर्वेटिज्म। 1815 ऑनवर्ड ये कंजर्वेटिज्म है। अब देखिएगा बच्चों, ये कंजर्वेटिज्म के खिलाफ आवाज उठेगी। मैं बार-बार कहता हूं, परिवर्तन इतिहास की धारा है और ये परिवर्तन इतिहास में तब होती है जब वो इंटरैक्शन होती है एनवायरनमेंट यानी कि जो कंडीशंस प्रिवेल करती है और ह्यूमन सोसाइटी के बीच, और इनकी इंटरैक्शन से एक नई व्यवस्था जन्म लेगी। तो कंजर्वेटिज्म आई, लेकिन इसके खिलाफ भी लोगों को विद्रोह करना है और इसी विद्रोह से, जैसा मैंने कहा था कि नेशनलिज्म के रास्ते बनेंगे। तो थोड़ा सा इसका अभी और पढ़ेंगे कंजर्वेटिज्म के विषय में। और चूंकि इस लड़ाई के बाद, नेपोलियन की डिफीट के बाद एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट होगी, दैट इज कॉल्ड ट्रीटी ऑफ वियना, जिसने कंजर्वेटिज्म को पूरे यूरोप में एस्टैब्लिश किया। और वहां पे एक व्यक्ति की रोल में आएगा जिसका
मेटरनिक। एक्चुअली 1815 टू 1830, 1815 से 1830 का जो पीरियड है यूरोप में, उससे मेटरनिक एज है। क्योंकि मेटरनिक एक ऐसा फिगर बना उस पीरियड में यूरोप में, जैसे नेपोलियन था उसी प्रकार से सबसे ताकतवर इट वॉज मेटरनिक, एंड दैट पीरियड वाज आल्सो कॉल्ड द मेटरनिक एज और एज ऑफ कंजर्वेटिज्म, 1815 टू 1830। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है द वियना कांग्रेस एंड द एज ऑफ मेटरनिक। चलिए बच्चों, बात करते हैं कंजर्वेटिज्म की। दैट कंजर्वेटिज्म was established just after the defeat of Napoleon in 1815. Do you remember the joint forces who defeated Napoleon? Four powers? Yes. Name? Number one, Britain, Russia, Austria, and Prussia. So these four powers, after the defeat of Napoleon, met at Vienna. Vienna is in Austria, and over they had just signed an agreement called Treaty of Vienna. It was done in 1815. One marks question यहाँ से पूछे जा सकते हैं, one marks question याद रखिएगा। Treaty of Vienna कब हुई? 1815 में, and that particular Treaty of Vienna was participated by four powers. Remember, Britain, Russia, Austria, and Prussia. ये चार पावर हैं ट्रीटी ऑफ वियना में शामिल। ये चारों पावर ही हैं जिसने नेपोलियन को हराया, और इन चारों के बीच ट्रीटी ऑफ वियना होती है। एंड दिस पर्टिकुलर treaty, this particular meeting that was held at Vienna in 1815 among these four powers was led by Austrian Chancellor Duke Metternich. What is Duke Metternich? यहाँ से भी वन मार्क क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनटीएससी में पूछे गए हैं वन मार्क क्वेश्चन कि who led the Vienna Congress? वियना कांग्रेस से वियना की ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ वियना। यहाँ याद रखिएगा, वियना कांग्रेस भी पूछा जाए तो आप उसको नाम देंगे क्या? 1850 यहाँ से हो सकता है वियना कांग्रेस 1850। अब यहाँ से आपसे 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं कि वियना कांग्रेस के विषय में बताइए, यानी ट्रीटी ऑफ वियना में क्या क्या कंडीशंस थी, क्या क्या। इफ यू हैव बीन आस्क्ड, नॉर्मली 3 mark questions are going to be asked from this topic, that state the provisions of the Vienna Congress or Treaty of Vienna. कई बार ये भी पूछा जाता है 1 नंबर में, what was the objective of Vienna Congress? If the question will be asked for 1 marks like this, you have to give answer in 1 sentence, that is to bring all the work done by Napoleon to be ended, और ऐसे कर सकते to undo all the work done by Napoleon during his regime. वियना कांग्रेस was organized, यानी नेपोलियन के किए गए सभी कामों को undo कर देना। कंप्यूटर में पढ़ते हैं redo undo, तो undo कर देना, यानी कि उन सारे काम को withdraw कर देना, उन सबको रोक देना, ठीक से पुरानी व्यवस्था में स्थापित कर देना, उसी लिए वियना कांग्रेस नहीं। But you have been very much careful. If the question will be asked for 3 marks, you have to go through these points. Number 1, Britain, Russia, Austria, and Prussia met at Vienna and decided to undo. This was I was saying all the changes introduced by Napoleon in their countries. Next one. अब इसके बाद की प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, अब क्या किया गया कि फ्रांस के अंदर और पूरे यूरोप में परिवर्तन लाने की बात, अंडू करना है, नेपोलियन के सारी चीजों को बदल देना है। तो क्या किया? सबसे पहले बुर्बन डायनेस्टी, याद है बुर्बन डायनेस्टी? इन क्लास 9 we were discussing about the French Revolution over there. Louis XVI was a ruler belongs to Bourbon dynasty. और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद लुई 16 को हटा दिया गया, उसकी हत्या कर दी जाती, गुलटैन कर दी जाती, उसका रिपब्लिक ऑफ होम गवर्नमेंट आती, फिर नेपोलियन आ जाता है, तो बुर्बन डायनेस्टी समाप्त हो चुकी थी। बट आफ्टर वियना कांग्रेस अगेन बुर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड इन फ्रांस, फिर से उसी राजवंश के लोग को राजा बनाया गया। फ्रांस में क्या गई? मोनार्की,
और कीजिएगा, once again monarchical government was set up in France. फ्रांस में फिर से राजतंत्र आ गया। अब क्या किया गया, ये चारों राज्य जिन्होंने मिलकर के नेपोलियन को हराया था, they were very much suspicious about the France. They were just decided to create such kind of condition that they should always keep a check on France. कि फ्रांस कभी भी फिर भविष्य में ताकतवर नहीं हो सकती, फिर से कोई दूसरा नेपोलियन आकर के पूरे यूरोप पे कब्जा नहीं करे। तो फ्रांस की बाउंड्रीज के चारों उन्होंने अलग अलग राज्य को एस्टैब्लिश किया जो उनके कंट्रोल में थी, ताकि भविष्य में कभी भी फ्रांस हटाने की कोशिश करे तो वो कुचल दिए जाए। क्या किया उन्होंने, देखो, टू कीप अ चेक ऑन फ्रांस, किंगडम ऑफ नीदरलैंड रूलिंग ओवर बेल्जियम वाज सेट अप इन द नॉर्थ। फ्रांस के नॉर्थ में एक किंगडम एस्टैब्लिश की गई। ये वही इलाके हैं जो नेपोलियन ने कब्जा कर रखा था, जीत लिया था, वो अब ये चारों आपस में बांट रहे हैं। ऑस्ट्रिया वाज गिवन द नॉर्दर्न इटली, रशिया वाज गिवन अ पार्ट ऑफ पोलैंड। इन सारी चीजों के बीच एक चीज मार्केबल है, जर्मन कॉन्फेडरेशन जिसे नेपोलियन ने बनाया था 39 स्टेट्स के रूप में, 300 को हटा कर 9 किया था, इट वाज अनटच्ड। वहां पे कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। जानते हैं, आप सवाल कर सकते हैं सर अंडियों की बात की तो इसमें नहीं बदला। गौर कीजिए, दिस इज रशिया। एज आई हैव टोल्ड यू, among those confederation of 9 German kingdoms, Prussia was the most powerful, and Prussia was aiming to have its control over those 39 German states. So if those 39 confederacies were going to be touched और फिर से उसको 300 से अधिक किंगडम में बदल के दिया जाता पुरानी व्यवस्था में, तो that creates a major problem for Prussia and its dream. तो प्रशिया के इंटरेस्ट क्योंकि यहाँ है 39 स्टेट्स को जोड़ के रखने में, क्योंकि प्रशिया की एम है कि इस पे रूल करना, 39 स्टेट्स हमारे कंट्रोल में रहे, इसीलिए यहाँ अनटच है। सारे नेपोलियन के बीट्स को अनडू किया गया, बट दिस वर्क वाज रिमेन अनटच्ड ओनली बिकॉज देयर वाज द इंटरेस्ट ऑफ पर्शिया। एंड दिस पर्शिया, दिस states of German Confederacy was going to become a key for the unification of Germany. ये हम पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं वो है इस कंजर्वेटिज्म का कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इसके फीचर्स और कॉन्सिक्वेंसेस को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, how conservatism has been taken by the European society, that is the question. These four powers, namely Britain, Russia, Prussia and Austria, have established conservatism. Whether people were ready to accept this new system? The answer is absolutely not. Because under the Napoleon, they had already tasted the fruits of the principles of French Revolution, equality, liberty and fraternity. Even though Napoleon himself curbed the principles of liberty, equality, fraternity on a number of occasions. मतलब मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंजर्वेटिज्म रिजिम के एस्टैब्लिशमेंट के बाद क्या जनता ने स्वीकार किया? नहीं, जनता की तरफ से रिएक्शंस आए, इसके विरोध में। ये विरोध क्यों जनता तैयार है? यू हैव ऑलरेडी सीन कि कंजर्वेटिज्म जस्ट रेसिस्ट टू एस्टैब्लिश द ट्रेडिशनल सिस्टम, और ये उसकी मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करके उसको मजबूत करने की बात करते थे, जिसमें इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रीडम जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से निकली हुई विचारधाराएं थी, उसके खिलाफ ये बात थी। They also put censorship, means freedom of expression को हमने सपोर्टाइज किया।
They also put censorship, means freedom of expression को हमने सपोर्टाइज किया. Plays, music, dance, drama, books, magazines, they all were under the strict supervision of the government. Nothing can be published that goes against the interest of the government, that will decide the government. ये कल्चरल जो फीचर्स है उस रिजीम की फीचर्स वो क्या है कि ऑटोक्रेटिक होगी और डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म, आलोचना बर्दाश्त नहीं करेंगे, एंड डिसेंट एंड साउट टू कर्ब एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट. यानी वो क्रिटिसिज्म को बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, किसी प्रकार के विरोधों को दबा देंगे, मजबूती के साथ सप्रेस करें और अपने राज्य में किसी प्रकार की उस सोच को पनपने नहीं देंगे जो ऑटोक्रेटिक रूल कंजर्वेटिज्म के खिलाफ है. इसलिए सेंसरशिप है. बट पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट बिकॉज दे हैव ऑलरेडी टेस्टेड द फ्रूट्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस. फ्रेंच रेवोल्यूशन ने ग्रांट किया था राइट्स, भले ही लिमिटेड थी लेकिन कई परिवर्तन की बात थी. अब बोलेंगे सर यूरोप की बात है, फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं. एक्चुअली बाद में नेपोलियन ने एक बड़ा एम्पायर बनाया जिसमें यूरोप के सारे लगभग देश थे, कुछ देशों को छोड़ करके. तो उन्हें फ्रेंच रेवोल्यूशन से निकलने वाली उन विचारधाराओं का आभास था. नेपोलियन के रिजीम में दे फील समहाउ इज इन कंपैरिजन टू दिस रिजीम, सो दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट सच काइंड ऑफ ऑटोक्रेटिक रूल. और इसी के विरोध में वहां पे रेवोल्यूशनरीज एक ग्रुप पैदा हुआ, रेवोल्यूशनरीज फॉर्म थे एंड दे वर जस्ट ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप इन डिफरेंट कंट्रीज. और कंजर्वेटिज्म के खिलाफ लड़ना ही इनका मकसद था. हु आर रेवोल्यूशनरीज? सी व्हाट आई हैव टू. Revolutionaries means to oppose monarchical forms that had been established after the Vienna Congress. Vienna Congress के बाद जो monarchical form of government यूरोप में स्थापित हुई उसके खिलाफ and to fight for liberty and freedom. क्या किसी से लड़ना है? आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए वहां लड़ना है. ये है revolutionaries का मतलब. और इसके कारण इसी परिप्रेक्ष्य में in European countries wherever there is a conservatism, a number of secret organizations were formed. And they were organizing the people, training the people against such kind of conservative regime, autocratic regime. और इसमें कुछ रेवोल्यूशनरीज के विषय में हम पढ़ेंगे, जैसे मेजनी के विषय में पढ़ेंगे. He was the architect of German unification or Italian unification. It is the architect of Italian unification. पर इस प्रकार के कई सारे रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस और रेवोल्यूशनरीज पैदा हुए जिन्होंने लोगों के विचारों को इंस्पायर किया. तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इन्हीं के विषय में पढ़ेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे उसके बाद एज ऑफ रेवोल्यूशन जो 1830 से 1848 तक का पीरियड होगा. बहुत इंपॉर्टेंट. मैंने क्या कहा था कि 1815 में रिजीम एस्टैब्लिश हुई, कौन सी? कंजर्वेटिज्म. लेकिन पीरियड क्या था? 1830 आते आते कंजर्वेटिज्म के खिलाफ यूरोप में एक सीरीज ऑफ मूवमेंट शुरू हो गई और कंजर्वेटिज्म के पांव उखड़ गए. तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी सी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज मेजनी के विषय में और एक रेवोल्यूशन 1830 से 1848 के.